Whenever I listen something like will India qualify for AFC Asian Cup or something related to AFC Asian Cup, there are two words comes into my mind. One from the great Indian commentator Nobi Kapadia and second from Indian captain leader legend Sunil Chhetri. What they said? They says everyone asked about when India will play FIFA World Cup. The question is not that. The question should be how India will play the AFC Asian Cup. What they says also? They says to qualify for FIFA World Cup, India need to participate AFC Asian Cup consecutively. After 2 or 3 AFC Asian Cup, when India will be on top 10 or top 15, from there we can think about FIFA World Cup, and after 2-3 batches the level will be up and the young boys will dream to play the FIFA World Cup. Hello and welcome back to Indo Football Infinity. In this video we'll talk about in details AFC Asian Cup qualifiers, draw, and also the opponent we have got from Group D and their recent performance. So if you like the video, make sure that you press the like button, subscribe to the channel and press the bell icon for future update. For AFC Asian Cup 2023, there are only 11 slots are available because 13 teams already qualified, as I mentioned in my previous video. So from 24 teams that will play in these qualifiers will be aim to be on top 11 because 11 slots are available and 24 teams distributed in 6 groups. From Group A we have Jordan, Kuwait, Indonesia and Nepal. On Group B we have Palestine, Philippines, Yemen and Mongolia. On Group C we have Uzbekistan, Thailand, Maldives and Sri Lanka. On Group D we have India, Hong Kong, Afghanistan and Cambodia. On Group E we have Bahrain, Turkmenistan, Malaysia and Bangladesh. And Group F we have Kyrgyz Republic, Tajikistan, Myanmar and Singapore. तो अगर हम बात करें कि ग्रुप ऑफ डेथ, आप यहाँ पर ग्रुप बी को आप कह सकते हो, आप यहाँ पर ग्रुप ई को भी ग्रुप ऑफ डेथ कह सकते हो। बाकी जो भी सारे ग्रुप है वो क्लियर 2 फेवरेट्स यहाँ पर जॉर्डन, कुवैत लग रहा है मुझे। उसके बाद ग्रुप सी के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी उज्बेकिस्तान, थाईलैंड क्लियर फेवरेट्स है फिनिश करने में, रनर्स एंड विनर्स ग्रुप का। उसके बाद ग्रुप ई में भी बहुत फाइट है, बहरीन है, वहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, मलेशिया है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। बांग्लादेश भी तुर्कमेनिस्तान को अच्छा टक्कर दे सकता है, तो ये भी एक बहुत ही हार्ड ग्रुप होने वाला है। तो अब हम चलेंगे इंडिया के ग्रुप के बारे में। तो इंडिया को हांगकांग मिला है जिसका रैंक है 148, इंडिया को अफगानिस्तान मिला है 150 एंड फ्रॉम पॉट 4 वी गॉट कंबोडिया जिसका फीफा रैंक है 171। तो अगर हम बात करें इंडिया के बारे में तो इंडिया को टॉप 2 में फिनिश करना है, बट अगर हम देखें ऑन पेपर इंडिया इज़ क्लियर फेवरेट्स बिकॉज इंडिया का फीफा रैंक अगर हम देखें तो इंडिया का फीफा रैंक है 104, उसके बाद हांगकांग आता है जिसका रैंक है 148। बट अब लोगों को ये जानकारी है कि फीफा रैंकिंग उतना महत्व नहीं रखता है कोई भी क्वालिफायर्स और टूर्नामेंट के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बट इंडिया इज़ क्लियर फेवरेट्स ऑन पेपर। इंडिया को टॉप 2 में फिनिश करना है और टॉप 2 भी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है ग्रुप में। इंडिया को एज अ चैम्पियन ग्रुप का इंडिया को फिनिश करने के लिए टारगेट करना पड़ेगा, इंडिया वही करेगा एज आई थिंक एंड आई वांट ऑल द मैचेस विल हैपन इन कोलकाता। अगर इंडिया ऑल 3 मैचेस जीतेगा उसके बाद AFC एशियन कप जाएगा तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा और वहाँ पर AFC एशियन कप में भी इंडिया को शायद से पॉट 3 मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी इंडिया के बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इंडिया हैव टू बीट हांगकांग, अफगानिस्तान एंड कंबोडिया। दैट्स नॉट ईजी, दैट्स नॉट अ केक वॉक, आई नो, बिकॉज ऑल दीज टीम्स विल नॉट सिट बैक, दे विल ऑल्सो गिव अ ह्यूज प्रेशर ऑन इंडियन डिफेंस. So it will be a great match to watch and I request all of you to came Salt Lake Stadium. हम चलते हैं कि हांगकांग नेशनल टीम के बारे में. As I said, they are ranked 148 in FIFA latest ranking. On their last 3 friendly matches, they lost against Bahrain 4-0 जो 15 जून को हुआ था वर्ल्ड कप प्लस एशियन कप का जो जॉइंट क्वालिफायर्स था वहाँ पर। उसके पहले वो लास्ट मैच खेला था 11 जून को अगेंस्ट इराक जहाँ पर वो 1-0 डिफीट
फेस करा था। उसके पहले वो खेला था 3 जून वर्सेस ईरान, वहाँ पर 3-1 डिफीट फेस करना पड़ा हांगकांग को एंड दे प्लेड लास्ट ऑन जून। उसके बाद कुछ भी फ्रेंडलीज नहीं खेला है हांगकांग ने। तो ये रही हांगकांग के लिए अपडेट। अब हम चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। एज आई सेड, अफगानिस्तान का फीफा रैंक है 150। लास्ट 3 फ्रेंडली के बारे में बात करें तो 16 नवंबर को वो फ्रेंडली खेला है इंडोनेशिया के अगेंस्ट, जहाँ पर उन्होंने 1-0 विक्ट्री अदा किया है। उसके बाद अगर हम बात करें 15 जून इंडिया के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ खेला था, जो वर्ल्ड कप का और एशियन कप का जॉइंट क्वालिफायर्स था। उसके पहले 11 जून ओमान के अगेंस्ट खेला था, एक 1-1 डिफीट खेला था। तो अब हम चलते हैं कंबोडिया के अगेंस्ट, जो ग्रुप का सबसे वीक टीम आप कह सकते हो, जिसका फीफा रैंकिंग है 171। और अगर हम लास्ट 3 फ्रेंडली के बारे में बात करें तो 19 दिसंबर कंबोडिया ने खेला है वियतनाम के अगेंस्ट, जहां पर 1-0 डिफीट फेस किया है। उसके पहले 15 दिसंबर खेला है लाओस के अगेंस्ट, जहां पर 3-0 एक विक्टोरी वहाँ पर फेस किया था कंबोडिया ने। उसके पहले 9 दिसंबर को इंडोनेशिया के अगेंस्ट 2-4 की एक डिफीट मिली थी कंबोडिया को। तो ऐसी रही इंडिया की ग्रुप की जो भी सारी टीम्स है उसका रिसेंट रिजल्ट। तो ये तो रही ड्रॉ के बारे में डिटेल्स और ओपोनेंट के बारे में डिटेल्स। तो कोच साहब क्या बोला है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो इगो स्टीमेच सेज ड्रॉस कैन ऑलवेज बी गुड और बैड, बट वी नीड टू डू आवर जॉब. We plan to begin our preparatory camp in Kolkata from the first week of May, but players from Mumbai City FC won't be available before May of 29, owing to their club committee in the AFC Champions League. Furthermore, most likely ATK Mohun Bagan is also likely to be involved in AFC Cup, and their players will also be unavailable till May 25, Stimac informed. And there are almost 12 or more players from both the clubs who are the part of the national team, said Igor Stimac. In a situation we need to check on others players, prepare them and wait for others to join. The situation is very similar to March prior to the friendlies, added Igor Stimac. Afghanistan have always been a difficult opponent. They come with players who have experience playing in international league, and Hong Kong will also be strengthened when there are 3 players from Brazil. हांगकांग के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। हांगकांग की नेशनल टीम के लिए ब्राज़ील का न्यूट्रलाइज प्लेयर भी खेलता है। मे बी वन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड जॉइन देम along with a host of others who also play abroad, but we need to justify our position at pot 1 team. We are playing at home and hopefully with the fans cheering us from the stands, the players will be extra motivated. तो ये रही कोच इगो स्टीमेच ने बात किया है। हाँ, हांगकांग नेशनल टीम के लिए 3 सेंट्रलाइज प्लेयर और भी प्लेयर खेल सकता है, बट उनका पॉलिसी है, हम वहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। और अगर हम बात करें हांगकांग नेशनल टीम का, एक जैसा प्लस पॉइंट है, वीक पॉइंट भी है कि हांगकांग नेशनल टीम का एवरेज एज है 29.1। तो उनका जो भी सेंट्रल डिफेंडर है और साइड बैक है वो एजेड प्लेयर है, 32, 33 ऐसे करके एज है। तो ये एक इंडियन स्पीडी विंगर के लिए और जो भी साइड बैक खेलेगा, फुल बैक खेलेगा, उसके लिए बहुत ही एक एडवांटेज साबित हो सकता है। इगो स्टीमेच को इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और अफगानिस्तान एक हमारे लिए एक बहुत ही नोइंग ओपोनेंट है, तो अब अफगानिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा प्लान करना पड़ेगा इंडिया को। तो इंडिया को एज अ प्लान सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। और I want India to finish on group top as a group winner and with 9 points. So let's hope that India finish on top, and I hope you all will come to Salt Lake Stadium. I will also go. So it will be a huge 1 week from 8 to 14 June. On 8 India will face Cambodia. On 11th India will face Afghanistan, and 14 India will face the second toughest team in this group, Hong Kong, on 14. So will be a huge competition for India. So I am ending this video here. If you like the video, make sure that you press the like button, subscribe to the channel and press the bell icon for future update. और जो भी हांगकांग, अफगानिस्तान, कंबोडिया के लिए डिटेल्स में 3 वीडियोस आएगा ओपोनेंट वॉच करके, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाद में। तो तब तक के लिए बाय, अच्छे रहना।